So let's begin with our session. I would like to introduce myself first. I'm Dr. Saima Khan. I'm head of the Department of Global Studies at the Institute of Global and Historical Studies, Government College University, Lahore. The department deals with interdisciplinary global issues, how different disciplines intersect with each other. और आज का भी जो टॉपिक आप करने जा रहे हैं, this whole panel is hosted by Pakistan Economic Forum, which is a leading platform providing to all the economists or any discipline which somehow the other is pertinent to economy, and with the collaboration of Global Studies Department of the Institute of Global and Historical Studies at Government College University, Lahore. I welcome you all. Thank you so very much for joining us. And आज Sunday था, आप लोग busy होंगे. Joined. We're very thankful to you. Before I introduce our esteemed guest to you, please आप लोग extra mics off कर दीजिए. I would not like to call on the names. That doesn't look nice. आप लोग खुद अपने अपने mics बंद कर दीजिए because a lot of disturbance comes. और हमारे कई जो participants हैं, they have very intermittent internet connection, तो उनको भी disturbance होती है. Thank you so very much. Very kind of you. Anyways, let's come back to our session. Before I introduce our esteemed guests to you, I would like to introduce the topic to you, which is very, very pertinent and which is very important indeed. क्योंकि हमारे पास बहुत से students ने भी join किया हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक से पहले थोड़ा सा बताना बड़ा जरूरी है ताकि आपको हमारे गेस्ट की एक्सपर्टीज का भी अंदाजा हो जाए कि how important this topic is, and calling them means that they are real experts in this field. The topic that what alternative we are offering to UST from BRICS, ये हमारा जो भी topic है, what we can offer in case of BRICS. पहले तो समझना जरूरी है what is BRICS. So let me briefly tell you the concept of BRICS, which because a number of students have joined us. BRICS basically is an acronym, एक abbreviation type कह लें या एक alphabetical पहला alphabet जो लेते हैं उसकी इकट्ठी representation देख लीजिए. It is an acronym which represent few economies, emerging economies like Brazil, Russia, India, China, and South Africa. And these economies, they're emerging economies, they are posing an opposition to already developed economies like USA and the European countries. Now, this BRICS actually was formed as a group, was formed first time in 2001, and the term was first used by Goldman Sachs economist Jim O'Neill. Goldman Sachs एक firm है जो कि economy के different solutions offer करती है. वहाँ पे एक economist है Jim O'Neill who described these four Brazil, Russia, India, and China as very emerging economies. And later in 2006, South Africa also joined. And then recently, in 2023 इनकी summit हुई जिसमें South Africa ने बताया कि more than 40 countries they want to join BRICS now, and these representative of BRICS they were meeting informally, and the basic purpose of meeting informally was to offer a solution against Western dominated global institutions like IMF and World Bank, and they wanted to have their own economic development. But इकोनॉमी पे ही ये बात नहीं रखती, ये बात जाती है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, that how they would have control, political control over the geography, the whole global geography. Now, looking at all this, understanding all this, we have now a concept of new currency which is coming in, जिसके ऊपर Donald Trump का भी एक बड़ा strict सा tweet भी आया है that that's not possible, that's against sovereignty of USA. ब्रिक्स ने ये जो मैंने आपके सामने कंट्रीज का नाम लिया, 5 कंट्रीज का, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव करेंसी पेश करने की कोशिश की है. Now the currency is actually very important because it actually determines the power of any country and how it rules. जितनी strong currency होगी, definitely our esteemed guests would tell you better, they are more expert. वही country determine करता है who is powerful. So they have offered new currency, this concept. So this is what we are going to discuss. And to discuss this, I'm going to now introduce our guests who are expert in their field.
First, I would like to introduce Dr. Waqar Ahmed. Dr. Waqar Ahmed has PhD in economics, and he's team lead of Oxford Policy Management, which is generally and popularly known as OPM. He led programs in World Bank, UNDP, and Asian Development Bank, and he is also a former civil servant. His expertise is public finance, tax and trade, reforms, local governance, and private sector competitiveness. Then we have Professor Dr. Abdul Jabbar Khan. He is an academic and professional. बहुत से इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुके हैं, बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इन्हीं इश्यूज से रिलेटेड सुपरविजन भी दे चुके हुए हैं. He had been stayed as HEC reviewer and media outlets पे भी he had been working like Economic Review and The Nation. And he has his education from IBA, Institute of Business Administration, कराची का बहुत ही famous institute है, and University of Karachi. Then we have Professor Dr. Talat Anwar. He has MSc in Development Economics from University of Warwick and PhD Economics from University of Sussex, UK. He has 38 plus years of experience in various institutes, including, he is SBP chair at BZU, and then PIDE, and he has been in Planning Commission, ComSets में भी रह चुके हैं, CEDA में भी रह चुके हैं, UNDP में, Allama Iqbal Open University, you name it, and उनकी CV के अंदर सारे नाम आ रहे हैं. He has such an expertise, and DFID में, World Bank में, और इस तरह के सारे institutes UNDP में. So definitely they are very well aware of the Western perspective as well and how they work. His area of expertise is Pakistan economy and planning, and fiscal and monetary policies, banking and finance, public policy, poverty, income distribution, globalization, and energy sector. So today we are going to learn a lot that how this whole process of globalization, which is starting from economy, then leading towards politics, is going to impact different countries. और वो countries जो उठे थे south से और जिन्होंने global north, powerful developed global north को challenge किया था, how the developing global south is being affected. So first of all, I would like Dr. Waqar to address this particular topic. What do you say about this whole scenario of having new currency? So. Thank you, Dr. Saiba. I think you have laid a very strong foundation for this meeting, and I think people would have benefited from the introduction that you have given. So thank you very much for that background. I think, as also mentioned by you, BRICS now, of course, has a very significant economic profile and size. Putting together, these countries now sort of represent almost 37% of global GDP. And in terms of population, these countries now represent almost 44% of the population. So it's a diverse group of emerging markets, and it has vast natural resources, large number of consumers that it services, and an increasing intra-BRICS trade and intra-BRICS investment collaboration as well. So this sort of positions these countries as very pivotal players in shaping the future of international finance. Despite of course, what the US has been trying to inform them against the kind of financial integration that BRICS wants to pursue. So with a combined population exceeding 3 billion, this is a bloc which really holds probably the largest chunk of consumer market. And in terms of foreign exchange reserves, they are holding 42% of global central bank forex reserves. And this sort of gives them the leverage to design the kind of financial architecture they want to design, at least amongst themselves, even if not at the global level, or even if they cannot sort of alter or in some way undermine the dominance of, let's say, US dollar or US backed financial infrastructure. At the same time, we have seen that individually, many of the BRICS member countries
have done financial innovation at their own level as well, which was sort of which sort of became mandatory due to their own conditions. You mentioned the geopolitical factor, which could be one. Let's say in case of Russia, for example, it faced sanctions, so it had to find out other wire medias as well to keep its trade and finance going. We see that Iran is also increasingly integrating with big BRICS members, again, a sanctioned country, which is requiring alternate financial integration means. So in a sense, countries which have faced restrictions in international financial architecture and countries which would like to exercise greater economic sovereignty get to gain from the kind of choices that BRICS sort of offers. And it was due to this geopolitical sort of factor that they coined the BRICS Cross-Border Payment Initiative, or BRICS Pay as we call it, as a system that could over time sort of parallel with the SWIFT system, as we call it currently. Currently, all financial transactions pass through SWIFT system. And BRICS had, in 2018, given the idea of BRICS Pay as a parallel to this. Of course, this requires a lot of work before member countries have faith in this, or countries who are trading with BRICS, non-BRICS partners who are trading with BRICS have sort of complete faith in this system, or are allowed to undertake this system. But of course, they haven't stopped over here. They have gone ahead, and given that any payment system has to be backed by the region's or member countries' own reserve system, so they have actually started work on the BRICS reserve mechanism as well. And the New Development Bank has done several working papers on this, which can be found online. It is only if BRICS is able to back itself with its own BRICS reserve that we will have greater confidence in BRICS Pay as a competitor to SWIFT. Now, the part about BRICS currency is still very early. And while, of course, some have said that they have discussed it in their meetings, but you have already seen that after President-elect Trump's statement, South Africa quickly backed out, and it said that we hadn't discussed any parallel sort of BRICS or any new BRICS currency. But yes, we had talked about BRICS reserve system for the time being. So the talk about BRICS currency is still very new. It is doable, of course, given the financial penetration of these members, particularly China and India, given the kind of trade transactions that they are managing at the moment. And of course, the pros that it brings for them is economic independence, increased trade, and diversification of reserves, given that for trade-related payments, you would have swap or currency swap or payment swaps in your own BRICS reserve or BRICS currency if that sort of time comes. So for now, I can sort of also point out three main challenges going forward, and then I can probably stop. I think going forward, given that there's a lot of geopolitics involved, there will be implementation challenges for establishing a parallel BRICS system or going beyond that to establish a new currency, given that this requires significant logistical regulatory challenges requiring cooperation amongst such diverse economies, which will then have to be bound by both fiscal and monetary rules. And this is not easy. We have seen this in the case of past 2 decades of euro area coordination in terms of the euro currency. The second main challenge would be the market resistance from
the BRICS economies themselves, from within themselves, given that their institutions are more used to dealing with the SWIFT system. So any transition away from US dollar may face resistance from the market players within the BRICS countries as well. So they need to be on board first, those who have to run such a system. And third, I think, Dr. Sahiba, as you've already said, BRICS countries have a lot of trade with North America, EU region, or the allies of US, and geopolitical tensions could mean heightened tariff and currency wars, something which the global economy may not be able to afford at this stage. So I'll just end for the time being, and we can come in with additional interventions later on. Thank you. Thank you, Dr. Waqar for insights, brief about the BRICS interactions. I would like to invite our second panelist, Dr. Talat Anwar Sahab. Dr. Sahab, will you please explain the connection between the BRICS और उसका जो आजकल जो एक डायग्राम चल रहा है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं? और इसके बारे में, क्योंकि अगर आप आज के सेशन में देखें तो हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में ना इसकी हिस्ट्री के बारे में पता, और ना इसकी जो पूरे का पूरा जो एक डायग्राम चल रहा है कि वो थ्रो कहाँ पे हो रहा है, और अब हमारा जो वर्ल्ड है वो डॉलर से ब्रिक्स से कैसे ट्रांसफर होता आ रहा है। तो ज़रा इसके ऊपर आप ज़रा अपनी ज़रा डिटेल्स बताइएगा ज़रा। थैंक यू। Thank you very much, Irfan, for inviting me for this webinar, and I'm really grateful to you and other, organizers. So it's a very hot area, and there has been a heated debate on BRICS countries, how they are going to affect the, dollarization, and their attempts will de-dollarize. This is the main agenda nowadays. And as you know, that the BRICS countries include mainly Brazil, Russia, China, India, South Africa, and plus other. Pakistan has also requested to join. There are other countries like, Saudi Arabia has participated, in the last meeting, while other countries like Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Pakistan, they have, given application to join the BRICS countries. So the interest, there has been an interest by other countries to join the BRICS group mainly because of the scope that they have, because they have various objectives. In particular, the main objective is now to de-dollarize de-dollarize the US dollar. So this is an important area, and I will say that first of all, I would like to explain you what is de-dollarization. De-dollarization refers to the role of US dollar in international transaction. BRICS bloc has a great potential to de-dollarize process in forex reserve and fuel trade. And as Dr. Waqar has already explained, that in terms of GDP, the BRICS has a share of 36% of global GDP in purchasing power. And in terms of nominal GDP, they have a share of 26% of global nominal GDP in 2020-24. And BRIC has a share, in terms of population, BRIC has a population share of 44%. BRICS has a share of 24% of central bank asset as percent of top 25 in 2020-24. So this is the strength of BRICS countries that they have compared to the US and their allies. So this is going to be a parallel group to the, there has been talk about the unipolar world. These BRICS countries have, they do have a political agenda as well.
And you know, although they have main economic interests, but the agenda is behind, political agenda is behind them. So this is the strength, you know, in terms of the share of population and share of global GDP. And now I come to the forex reserve and the potential area where BRICS have the advantage. BRICS has a great potential for de-dollarization, you know, in terms of forex reserve and trade. So the trade, if you look at the BRICS countries, you know, they control 42% of global central banks' forex reserve, likely contributing to the global de-dollarization process. And you may have seen there has been a rapid rise of BRICS central bank forex reserve as the BRICS forex reserve as percent of global increase from 20% in 2000 to 42%. You know, this has been a rapid increase over the last 20 years from 20% to 42%. Gold is another, gold is the biggest potential alternative to the US dollar. You know, since the failure of the gold system in 1992 and after the, you know, Second World War, Bretton Woods institution, they were established because of the failure of the gold system. But nowadays, you know, gold is gaining much importance. Why? Mainly because of the fact that, you know, Bank of International Settlement has defined the gold as a more secure investment. So that is why the countries are now buying gold. So BRICS countries are buying gold reserve, and they have been buying actively over the last few years. So if you look at the, you know, gold reserve, gold reserve of central bank, BRICS countries' central bank increased as percent of global increase from 4.5% in 2000 to 22% now. And despite, you know, the fact that they have been actively buying, BRICS countries have been actively buying gold. Gold is still only 10% of their central bank reserve, which is half of the global average. So there is more room to buy gold. And if they buy gold, they can, there's a, you know, there has been discussion that how they should anchor their currency. How should they back up their currency where gold can play a very important role? Now I come to the trade, which is a very important area, another or a potential area for de-dollarization. If you look at the trend, there has been a moderate rise of BRICS countries' trade since trade turnover as percent of global increased from 11% in 2000 to 20% in 2024. And if you look at other indicators, you know, compared to the global, if you look at other indicators like, you know, BRICS trade as percent of other BRICS countries increased rapidly from 20 to 27% during 2024, 2024, and BRICS plus when I say BRICS plus countries, it includes all 5 BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa, plus other countries, those who have been included, you know, or, they are participating now. I don't know how many, I think a significant amount of, Saudi Arabia is also going to, you know, join the BRICS, you know, and in the last meeting, they joined probably as an observer or as an active, you know, special invitation they have joined. If Saudi Arabia join the BRICS, you know, the power of BRICS will increase further because, you know, they will control about more than about, you know, 45% or 48% of oil production. So they will have a more power, you know. If the oil trade is de-dollarized, then it is going to benefit the BRICS countries. It is going to affect the US especially. So if you look at the trade turnover as percent of other emerging market, that increased from 10% to 30%. So emerging market has an area where BRICS countries can target, you know.
And they are in fact going to target the emerging market fuel. If you look at the BRICS countries turnover as percent of EM fuel trade, which increased from 11% in 2000 to about 36%. This is where Putin has said in the last meeting that we should focus on this emerging market fuel trade, where they have great prospects or scope to de-dollarize the fuel trade. And but another area where the scope of de-dollarization is limited is the area of external debt, because BRICS countries have a very low external liabilities. BRICS plus gross external debt as percent of global increased from 3% in 2002 only about 5.9% in 2024, because they don't have external debt or liabilities. They have limited liabilities compared to the US. US has more liabilities, tremendous almost I think 80% liabilities in the world goes to the US. I don't have figure, but this is my rough estimate. That I can say at the moment. And if you look at the area where this is external debt, this is a weak area where BRICS countries do not have edge over the US, because US dominates the debt market. Although the Chinese are now trying to introduce panda bonds and other bonds in they have recently introduced bond in Saudi Arabia, so in Chinese denomination. So that is also a process of de-dollarization. They're not going to use any dollar anymore. So the prospects for global diversification towards BRICS currencies, even a synthetic one, are limited by a very modest external liabilities of the member countries. So this is a weak area for the BRICS countries. Therefore, the de-dollarization of global forex reserve will largely stand to benefit the developed market rather than the emerging market. In other areas, BRICS is increasing its foothold in regional trade, becoming increasingly focused on trade between member countries and gaining, they have, trade swap and credit swap, many swap. We also have a swap with China, trade swap and the credit swap. So we also dealt some transaction in Chinese currency rather than the dollar, in past 10 years ago. So we started this process. So other countries are also actively doing this process. So as a trade partner, you can say the BRICS countries account for 37% of emerging market fuel trade. This is a key area for de-dollarization, where Putin has pointed out that we should target this emerging market fuel trade area, because the share is 37% of a emerging market fuel, where the dollar resisting transaction are taking place in dollar. So they want to fetch the share of this into BRICS currencies or other currencies. Meanwhile, the power of bloc is limited only to 30% share of global oil production. Oil production, they have only 30%, but when Saudi Arabia and other countries, other oil producing countries will join, they will have edge over other countries as well. And for BRICS currencies prospects, we need to look at the combined share of core BRICS currencies in various market, derivatives and financial transaction are two important areas where they have been successful. In particular, on the derivative side, the turnover share increased to 6.8% in 2022. And on the payment side, there has been a recent spike in role of BRICS currencies in the structure of SWIFT transaction to 6% in 2022.
So I think, despite the fact that the process is at early stage, and for issuing the currency, but I think they have a great potential. There is a great potential by the BRICS countries for de-dollarization, and which is going to affect the US in particular. So thank you very much for giving me an opportunity, Irfan. Thank you so very much, sir. It was very enlightening discussion. Sir, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए हैं who belong to very remote areas of Pakistan, and generally भी आपको पता है कि हमारे पास एक बड़ा ऐसा बच्चे भी हैं जो कि इंग्लिश में थोड़ी सी स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, और हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अगर थोड़ी उर्दू में भी बता दिया जाए तो उनके लिए जरा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा पर्टिनेंट नॉलेज है। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी, आपने बहुत अच्छी बातें की एंड वी कुड अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग, बट अगर आप इसको थोड़ा सा उर्दू में बच्चों को एक्सप्लेन कर दें ताकि वो ज्यादा अच्छे से इंगेज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है, उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, हमें जानना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि मे बी के इंटरनेशनल वेबिनार है और भी लोगों, तो दैट्स व्हाई आई थॉट एनीवे। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है ये ग्रुप पता नहीं कब हुआ था, 20-22 साल तो हो गए हैं, या एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन ये ग्रुप है बड़ा एक्टिव, जिसमें ब्रिक्स में स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये दे आर द फाउंडर मेंबर, कोर मेंबर कंट्रीज। दे फाउंडेड दिस ग्रुप इन अर्ली 2000, और उन्होंने, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि बेसिकली इनिशियली वो ट्रेड करना चाहते थे। इनिशियली दे वांटेड टू डू ट्रेड विद, दे वांटेड टू प्रमोट ट्रेड विद ईच अदर्स। उसके बाद जब ये उन्होंने देखा कि दे हैव अ पोटेंशियल, देयर शेयर ऑफ जीडीपी इज सिग्निफिकेंट इन ग्लोबल जीडीपी, so they thought that they can affect, influence the US dollar and the US interest in particular। US जो है यूनिपोलर वर्ल्ड है, आपने देखा होगा कि यूएस का जो है सब जानते हैं कि वो डंका बजता है पूरी दुनिया में, वो जो कहता है वो होता है। तो ये एक पैरेलल ग्रुप है, और जिन्होंने ये चैलेंज किया है उनकी हेजेमनी को, और चैलेंज करने के बाद अब ये कि वो, क्योंकि उनका एक सिग्निफिकेंट शेयर जीडीपी में है और अदर कंट्रीज आर ज्वाइनिंग, उनको भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो यूएस की जो मेन पावर है, अच्छा ये भी एक पॉइंट में मेंशन कर दूं, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये किया है। इनमें से ऐसे भी कंट्रीज है जिनका आपस में कुछ मामला है, यानी क्या मैं कहूँ इसको उर्दू में, जिनका कोई प्रॉब्लम है, समझे, मसला है। मैं कोई और ऐसा लफ्ज यूज नहीं कर सकता जो कॉमन है क्योंकि एकेडमिक है। तो जिनका कोई मामला है, झगड़ा है कह लें, तो वो, उनमें चाइना का ट्रेड वॉर चल रही है यूएस के साथ, एक ये है। दूसरी ये कि चाइना के साथ साथ रशिया का तो झगड़ा आपको पता है कि चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, जो यूक्रेन के वार चल रही, और भी इश्यूज हैं। तो उसके अलावा आप देखें कि जो है ईरान है, उसका भी प्रॉब्लम चल रहा है। जब कभी भी किसी का प्रॉब्लम यूएस के साथ होता है तो सबसे पहले वो इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज कर देते हैं, जिससे कि उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ मुतासिर होती है, ट्रेड मुतासिर होता है। तो एज वाज द केस विद चाइना, सॉरी रशिया के साथ यूक्रेन वार में फौरन इन्होंने इम्पोज की, लेकिन पुतिन ने उसके अल्टरनेटिव मेजर लेके उसको, यानी उसको डिफ्यूज कर दिया। दूसरा केस है ईरान का। के प्रॉब्लम है, ईरान तो मानता ही नहीं है उनकी डोमिनेंस को। तो हर कंट्री का अपना राइट है जैसे भी बिहेव करे। तो ईरान इज नाउ, ईरान पे भी यूएस इकोनॉमिक सैंक्शन है, इवन पाकिस्तान पे भी हो जाएंगी। पाकिस्तान क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, खुद मुख्तार नहीं है, हम वी आर हेविली डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ अवर heavy dependence on foreign aid or debt from abroad, in particular from the Western countries. Now we have dependence on China. चाइना पे भी हमारी डिपेंडेंस ज्यादा हो गई, जो कि अच्छा नहीं है। तो पहले हमारी यूरोप पे डिपेंडेंस थी, और हमारी ट्रेड की जो डिपेंडेंस यूरोप पे है, अमेरिका पे है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इन्होंने एक आगे फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और ओपनली इन्होंने ऐलान जंग कर दिया है अमेरिका के खिलाफ।
तो पाकिस्तान तो फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान तो क्योंकि आवर ट्रेड इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन यूरोप एंड अमेरिका। हमारे ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। हमारा ट्रेड बहुत सिग्निफिकेंट है इनके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। हमारी रेमिटेंस आती है यूरोप से मेनली और गल्फ कंट्रीज से, जो कि डॉलर को डोमिनेंस जहाँ चलती है। जो हम डॉलर अर्न करते हैं, जो पैसा कमाते हैं डॉलर में यूरोप अमेरिका से, वो हम चाइना पे खर्च कर देते हैं। चाइना में हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक मिसपरसेप्शन है कि जी सी पैक है वो है, लेकिन आप अगर टेक्निकली देखें हमारे इस हद तक तो है चाइना के पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, क्योंकि वो गर्म पानी तक आना चाहता है। वो सऊदी अरेबिया सी को एक्सेस करना चाहता है, ताकि वो स्ट्रेटेजिकली यूएस आर्मी के सामने आ सके। ये सारा गेम वॉर की है, और इसमें स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली चाइना की मूव है। तो हमने तो सी पैक से लेके कर्जे ही बढ़ाए हैं। आप देखें कि हमारे जो एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट थे, कितने बिजली महंगी हो गई है, उसमें भी हो गए प्रॉब्लम। फिर दूसरे हमारे डेट भी बढ़ गया। हाल दो सीपैक के बारे में कि गेम चेंजर है, ये अभी नहीं है, ये कभी हो जाएगा। मैं सीपैक के फेवर में हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमने अपना एक्सपोजर चाइना को बढ़ाया, और चाइना से हमने नॉट ओनली सीपैक की बोरिंग तो चीप थी, कंसेशनल थी, ठीक है, लेकिन जो हमने चाइना से कमर्शियल लोन लिए, वो अभी तक हम पे कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की जो कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है ना, वो बेसिकली वो ट्रेड्स और करंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि डेट से रिलेटेड है। बेसिकली इट्स अ डेट क्राइसिस। यूं कि डेट क्राइसिस हमें एवरी ईयर वी हैव टू पे 15 to 20 बिलियन यूएस डॉलर फॉर अवर डेट्स थ्रू अवर डेट सर्विसिंग, जो कि हमारे पास नहीं है। हमें आईएमएफ से प्रोग्राम 7 बिलियन यूएस डॉलर का हमने ले लिया है, ठीक 3 साल के लिए। हर साल 2-3 बिलियन आएंगे, लेकिन उसमें शर्त ये की कि आप अपने रोल ओवर करेंगे। रोल ओवर का मतलब है कि वो जो कर्जा जो लिया है, उस कर्जे को पे करने के लिए आप एक और कर्जा लेंगे। ये रोल ओवर का मतलब है कि चूंकि आप कर्जा पे नहीं कर सकते, तो उसका अगर 1 बिलियन का कर्जा पे करना है, तो आप मजीद 8 से 8 to 10% यूएस डॉलर जो है ना, इन डॉलर टर्म आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे हायर। तो एवरी ईयर हमारे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ये आईएमएफ इज नॉट अ सोल्यूशन। इतने टैक्सेस लगा दिए, आपने देखा है कि हमारे टैक्स देने की कैपेसिटी खत्म हो गई। जो प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन पे तो मोर 50% लग गए। जो गरीब लोग हैं उन पे भी टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत लग गए, और हमारी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो गई। और आईएमएफ का परमिशन आया है, वो मजीद टैक्सेस लगाने के लिए गया। तो हमें ये करना होना ये चाहता कि हम एक्सपेंडिचर रिड्यूस करते और टैक्सेस ना लगाते। तो उसका फायदा ये होता है कि जो है ना, लोगों में परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है। अब ये कि बात हो रही है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया है। इन्फ्लेशन कम हो गया है, इसमें एक बात ये आ रही है कि इन्फ्लेशन कम होने की बुनियादी वजह ये भी है कि जी लोगों में बाइंग कैपेसिटी नहीं रही है। जो पहले कम खरीदते थे जो चीजें, अब वो कम क्वालिटी की चीजें खरीद रहे हैं। जो खुला खर्च करते थे वो कम खर्च कर रहे हैं। जो बिल्कुल कम, यानी मिडिल इनकम ग्रुप है, वो लो क्वालिटी की चीजों पर आ गया। उसके पास पैसा ही नहीं है टैक्सेस देने के बाद और बिजली के बिल देने के बाद। तो ये डायरेक्शन जो थी ना, इट वाज द डायरेक्शन ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम वाज मिसप्लेस, अच्छा सही नहीं थी इन माय व्यू। और ये बहरहाल अब ये हुआ है, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अदरवाइज आप तो डिफॉल्ट कर जाते। आपके पास तो पैसे ही नहीं थे कि 15 बिलियन डॉलर जो है ना रोल ओवर करे। कोई कंट्री आपको कर्जा देने को तैयार नहीं था, ना चाइना, ना 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 सऊदी अरेबिया, ना ये। वो अपनी अपनी शराइत आयद करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो, ठीक है ना। उन्हें जमीन भी चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीजें चाहिए, उन्हें प्राइवेटाइजेशन में भी हिस्सा चाहिए। तो हमने जो है ना बोरोइंग करके अपनी सॉवरेंटी को जो है ना स्टेक पे रखा है, और जो ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स हम करते रहे हैं, उसका ये नतीजा आज नजर आ रहा है। एनीवे, मैं ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था कि चाइना के साथ हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है। हमारा वेस्टर्न एज अ पाकिस्तान का अगर ट्रेड देखा जाए, तो हमारे कंसर्न जो है ना, हमारे बेनिफिट्स और इंटरेस्ट स्टेक्स आर विद यूरोप एंड अमेरिका। तो हम डॉलराइजेशन की तरफ ही रहेंगे, हमें कोई डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं इतना जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर
हम पे इफेक्ट होगा तो वो बेहतर ही होगा, क्योंकि डॉलर विल डेप्रिशिएट एज द रिजल्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन। डॉलर विल डेप्रिशिएट एंड पाकिस्तानी रुपी विल गेन। तो हमारे कुछ कर्जे कम हो जाएंगे, डेट कम हो जाएंगे। तो ये बेसिकली मैं बताना ही चाहता था कि डी डॉलराइजेशन का बड़ा स्कोप है, क्योंकि उनके सिग्निफिकेंट शेयर है वर्ल्ड जीडीपी में, वर्ल्ड ट्रेड में, और स्पेशली वो दे आर नाउ, जो एरिया जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं वो है यानी फॉरेक्स गोल्ड का एरिया है, जिसमें वो टारगेट कर रहे हैं, दे आर बाइंग गोल्ड। और जब से ब्रिटिश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने मोर सिक्योर एसेट गोल्ड को डिक्लेयर किया है, उस वक्त से तो उनकी बाइंग बड़ी रैपिड हो गई। गोल्ड सारा वो 6,000 टन गोल्ड उन्होंने 2-3 सालों में बाई किया है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने सिर्फ 5,000 टन किया है। ये ब्रिक्स कंट्रीज से आप देखें, ब्रिक्स कंट्रीज ने बहुत ज्यादा गोल्ड बाई किया है, और स्टिल जो ना वो अपने ग्लोबल जो एवरेज से अभी 10% शॉर्ट है। तो वो देयर इज मच मोर स्कोप। जब वो गोल्ड ले लेंगे तो फिर उनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी, एंड दे विल लॉन्च आई थिंक प्रोबेबली ब्रिक करेंसी, जो कि उनका प्लान है। तो विच विल अफेक्ट द यूएस डॉलर, डॉलर विल डेप्रिशिएट। उसके पाकिस्तान को गेन होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, क्योंकि अदर क्रॉस कंट्री भी देख लें, क्रॉस करेंसी डेप्रिसिएशन, लेकिन इन नट शेल पाकिस्तान को फायदा होने को जा रहा है। जी थैंक यू, मैं ज्यादा टाइम नहीं, आप मेरा ख्याल क्लियर हो गया होगा मैंने जो पर्सपेक्टिव दिया है। जी थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू। स्टूडेंट्स को बात समझ आ जाए, हमारी बात पहुंच जाए, यही यही दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी हमारे पास जी क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए हैं, बट आई वुड लाइक कि हम उसको थोड़ा बाद में पूछते हैं। फर्स्ट देयर आर पीपल रेजिंग द हैंड्स एज वेल। लेट अस लिसन टू आवर थर्ड एंड लास्ट पैनलिस्ट, देन वी आर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब है, और ही वुड आल्सो स्पीक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सर प्लीज। ये जो काजान में मीटिंग हुई है अभी पीछे 22 से 24 तारीख को, इसमें पाकिस्तान को जाना था, लेकिन पाकिस्तान इसलिए नहीं गया कि वहां पे वीटो पावर है किसी एक मेंबर को। ब्रिक्स का जो इनिशियल फंडामेंटल मेंबर है वो अगर किसी पर ऑब्जेक्शन कर दे तो उसको मेंबरशिप लेने में आसानी नहीं होती। सेम इज द केस विद पाकिस्तान विद इंडिया। इंडिया चूंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, G20 में मौजूद है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ब्रिक्स का इनिशिएटिव उन लोगों ने लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये डी डॉलराइजेशन तो बहुत देर में होगी। ये ट्रंप ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की थी सबसे पहले, जैसे ही उन्होंने इलेक्ट हुए तो उनको पता लगा कि ब्रिक्स जो है बड़ी ताकत के साथ सामने आ रहा है। आई थिंक इसको इस बैकग्राउंड में देखें कि जब यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर शुरू हुई है और रशिया पर पाबंदियां आ गई, ईरान पर तो ऑलरेडी थी जैसे डॉक्टर। तो बात यह है कि ये जो नेटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही यूक्रेन से जंग शुरू हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रिक्स का जो फोरम है, क्लियरेंस ऑफ द पेमेंट का इश्यू है, स्विफ्ट का, ये जो ग्लोबल सिचुएशन पैदा हो रही है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन और लिमिटेशंस, इसमें चाइना, रशिया और जो मेंबर कंट्रीज हैं इनका बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन अभी अमेरिका के इन्फ्लुएंस से, ग्लोबल इन्फ्लुएंस से दुनिया बाहर नहीं आई है। ये अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा मेंबर कंट्रीज को। आई थिंक तकरीबन 60 के करीब मुल्क हैं जो कि ब्रिक्स के मेंबर बनने जा रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि इंडिया क्लियरेंस नहीं देगा। एनीवे, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं माशाल्लाह, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पैनल, उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मैं इसको नेटो के प्लेटफॉर्म की तरफ से देखता हूँ कि ये ब्रिक्स का एक डिफेंस का फोरम बनने जा रहा है, बनना चाहिए, बनेगा। और दूसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट की बात होगी, उसके बगैर कोई भी करेंसी, खा वो ब्रिक्स, पे ब्रिक्स हो या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक हो, वो कामयाब नहीं हो सकते। ये डिप्लोमेटिक, मॉनेटरी और डिफेंस रिलेटेड यानी स्ट्रेटेजिक सॉर्ट ऑफ अ फोरम होगा। ये प्योर इकोनॉमिक्स का फोरम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका, देखिए, सिक्का राइजुल वक्त कहा जाता है, मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे इस बात को, कि जिसका सिक्का उसी की हुकूमत। इस वक्त दुनिया भर में सिक्का सिर्फ अमेरिका का चलता है, दैट इज डॉलर। बाकी सब करेंसीज जो है ना उसको फॉलो करती हैं, उसके नीचे हैं, कमजोर है, खा वो यूरो हो, येन हो, या कोई और चाइनीज युआन हो, या रूबल हो, रशियन।
इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, बट इट विल टेक टाइम। प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच। अब हमारे पास काफी क्वेश्चन आंसर सेशन भी आ चुके हैं। यू मे आस्क योर Thank क्वेश्चन प्लीज। you. Thank you so much, madam. And thank you, Pakistan Economic Forum and the distinguished जो speakers हैं, सारों को सर बहुत informative session है। सर मेरा क्वेश्चन तलत साहब से है कि उन्होंने जो स्टार्ट में बात की सर, डॉक्टर साहब आपने बात की अबाउट द गोल्ड रिजर्व्स की, कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनकी जो रेशो है वो 20% है, बट ब्रिक्स की जो है वो 10% है। मतलब उनके लिए पोटेंशियल आपने एक्सप्लेन किया कि दिस इज अ गुड पोटेंशियल फॉर देम कि वो गोल्ड एक्यूमुलेशन कर ले एज अ रिजर्व। बट इन लाइन विद द जो डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ने जो बात की एंड में कि जिनका सिक्का चलता है उनकी अथॉरिटी होती है, तो डोंट यू थिंक सर कि जब एक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड जो होगा स्टिल इट विल बी ये डॉलर को मजीद स्ट्रेंथन करेगा? देखिए बात सुनिए, ग्लोबल देखिए, एक वक्त था कि आपका कुछ $100 के अंदर पर आउंस गोल्ड आता था इंटरनेशनल मार्केट में। स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ। आज जो है गोल्ड का रेट क्या है? देखिए, अल्टरनेट करेंसी, अल्टरनेट मेटल वैल्यू में गोल्ड के अलावा भी मेटल्स मौजूद हैं। वो प्लेटिनम और प्लेटिनम की शक्ल में मौजूद हैं, वो भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, लाई जाएंगी। लेकिन मेटल जो आपकी येलो मेटल है, इसकी वैल्यू अपनी जगह बड़ी सॉलिड है। और इंडिया के पास रिलीजियसली स्टॉक्स होते हैं। वहां की खवातीन गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं और उनके पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व हैं गोल्ड के। Question is, Dr. Vakar, it is difficult in the short run to divert away from SWIFT. Please enlighten us regarding the Russian payment method, SPE. Thank you very much. I think this is a very important question. Now, while of course Russia has its alternate mechanism in place, लेकिन उसको सिर्फ वही मुमालिक जो हैं वो रशिया के साथ उस सिस्टम में ट्रांजैक्शन करेंगे जिनको फैटिफ का जो है वो खदशा ना हो, जिनको भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का खतरा है, या जो मुल्क उसकी सर्वेलेंस में आ सकते हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो शायद उस तरीके से रशिया के साथ उस पेमेंट सिस्टम के ऊपर वो ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे। वी हैव सीन दिस कि रशिया ने जो है वो रिक्वेस्ट्स डाली हैं इंक्लूडिंग टू कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, लेकिन हम लोग ऑफ कोर्स चूंकि वी आर ऑलवेज केयरफुल, इसलिए हम लोग जो हैं वी आर नॉट going to use the system which Russia is suggesting, because हम लोग भी जो हैं वो आपको मालूम है कि बड़ी stringent FATF की oversight का हमें सामना रहता है। I hope that answers the question, जी। Thank you so much. Acha, then we have another question. जो आप भी Dr. Vakar, please you enlighten us on that, and then I would take from Dr. Talat and as well, क्योंकि question आप लोगों से पूछा जा रहा है। The question is, just okay. Okay, the question is, as we see failure of SARC due to Indo-Pak conflict, so should we assume that it's not possible for Pakistan to become part of BRICS until India is part of BRICS? While China also has conflicts with India, but they're still members of the BRICS. So ये एक regional politics की बात हो रही है that India भी है, India and China, they do have conflict, but yet they're part of it. और पाकिस्तान के आने की सिचुएशन क्या है? China is friend of Pakistan, but India is not friend. So how these friendship enemy relationship will go on to have mutual development? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स सार्क जो है वो जाहिर है ज़रा डोमिनेट रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो दोनों बहुत से ग्लोबल गवर्नेंस फोरम्स के मेंबर्स हैं, और ऑफ कोर्स कुछ जगहों पे इख्तलाफ है, कुछ जगहों पे इकट्ठे काम भी करना पड़ता है। आपने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में देखा है, कॉप की मीटिंग्स में देखा है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को इकट्ठे काम भी करना पड़ता है। SCO में इकट्ठे मेंबर्स हैं, ECO के अंदर ऑफ कोर्स इंडिया ने कई मीटिंग्स के अंदर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन एज ऑब्जर्वर की है, जहाँ पे पाकिस्तान ऑफ कोर्स मेंबर है। तो ऐसा नहीं है ऑफ कोर्स कि इंडिया विल कंटिन्यू टू ब्लॉक। पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, और ऑफ कोर्स अपनी रेलेवेंस दिखानी होगी उस ब्लॉक का, उस ब्लॉक के अंदर पहले ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर शमूलियत हासिल करने में, और दूसरा फिर व्हाट टैंजिबल benefits can the bloc get
from country X or country Y, वो हमें of course prove करना होगा over time. दूसरा ये भी है कि जैसे जैसे international connectivity dynamics change हो रही है, of course, डॉक्टर तलत ने जिस तरह BRI की बात की, पाकिस्तान is increasingly getting connected with China and other BRI economies, और financial integration terms में भी जो है वो अब आपने देखा है डिजिटल बैंकिंग के थ्रू भी इंटीग्रेशन हो रही है. तो given that Pakistan is the 5th largest population in the world, so of course eventually we have quite a decent chance of becoming partners in arrangements such as BRIC. Thank you so very much, sir. Dr. Talat, what would you answer with this? And then we'll go to Dr. Abdul Jabbar for this. How do you see this? थैंक यू वेरी मच. आई थिंक ये डॉक्टर वकार ने एक्सप्लेन कर दिया है खासा डिटेल में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यानी पाकिस्तान और इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है ना, और सार्क, एज फार एज सार्क इज कंसर्न, जो प्लेटफॉर्म है वो तो इनफेक्टिव और इनएक्टिव फोरम रहा है. कई साल पहले मैं भी जब सार्क की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता था वाइल आई वाज एट द प्लानिंग कमीशन, तो मैंने देखा कि वहाँ एक फॉर्मल मीटिंग होती है और कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं होती, अपने अपने इंडिकेटर्स प्रेजेंट कर दिए जाते हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई एजेंडा तय नहीं होता. बस वो प्रोग्रेस की, जिस कंट्री का ये हो गया है उस कंट्री की प्रोग्रेस ये रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल प्रोग्रेस हम डिस्कस कर लेते थे. इसी तरह फिर यहाँ से बड़े बड़े लोग जाते हैं, पाकिस्तान से टूर करते हैं, कुछ सार्क में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, सेंट्रल बैंक के भी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन वो जो भी कोशिश होती है कोई ऐसी पॉलिसी या कोई प्रोग्रेस या कोई और स्टेप लेने की ट्रेड और फाइनेंशियल जो है ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, वो इंडिया सबोटैच कर देता है. इंडिया डोमिनेंट है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता. तो ये तो सार्क को तो हम भूल जाए ना, कि सार्क में रह के हमें कोई फायदा हासिल हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा. जहां तक ब्रिक्स का है ताल्लुक है, ब्रिक्स में सर्टनली हमें फायदा होगा और हमें जाना चाहिए. और चूंकि वहाँ चाइना भी मौजूद है और रशिया भी मौजूद है, रशिया का भी इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान सार्क ब्रिक्स कंट्रीज में आए. इंडिया बेशक मुखालफत कर ले, लेकिन ये दो डोमिनेंट कंट्रीज जो है ना, रशिया और चाइना, ये पाकिस्तान को इतनी स्पेस देंगे कि पाकिस्तान शामिल हो जाए. तो पाकिस्तान यानी ब्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करंटली पाकिस्तान अपना ट्रेड जो है वो डॉलर में कर रहा है. वी आर यूजिंग डॉलर, हमारी फॉरेन असिस्टेंस सारी डॉलर में आ रही, हमारी सारी बोरोइंग जो है ना डॉलर में हो रही है, डेट रिपेमेंट भी डॉलर में हो रही है. तो वो दे आर लुकिंग फॉर कंट्रीज वेयर दे हैव स्कोप. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में खासा स्कोप है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए और पार्टली वो जो है ना अपना पोर्टफोलियो चेंज करें और ब्रिक जो भी ट्रेड हमारा जो ब्रिक्स कंट्रीज से हो, जो कि जिसमें रशिया है, चाइना है, इंडिया से तो ट्रेड नहीं है और ईरान से भी नहीं है हमारा, लेकिन और दूसरे कंट्रीज जो शामिल हो रहे हैं, ऑयल का जो सऊदी अरेबिया है, वो अगर उसमें होगा तो उनका मेन इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान जो है ना बायर है तेल का, और ट्रेड भी दूसरे मेनली बायर है जो ऑयल का. इमर्जिंग मार्केट में जो फ्यूल ट्रेड है उसमें एक इम्पोर्टेंट हमारा यानी 20 बिलियन के करीब तो हमारा ऑयल बिल होता है, 22 बिलियन. तो वो अगर डॉलर में चली जाए, डॉलर से हट के ब्रिक्स करेंसी में जाती है या किसी और में एक तरीके से पेमेंट होती है अदर करेंसीज में, तो वो तो उनका ऑब्जेक्टिव के लिए हम बड़े अट्रैक्टिव कंट्री थे, वो दे वुड लाइक टू इंक्लूड अस. ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के कहने पे हमें नहीं करेंगे, जो कि बात होती है कि इंडिया ऑब्जेक्शन कर सकता है जैसे हमेशा करता है, लेकिन ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो पाकिस्तान को शामिल करें. पाकिस्तान जैसा डॉक्टर वकार ने कहा एक बड़ा कंट्री है, आबादी बहुत है, फिर दूसरे जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारी हैवी डिपेंडेंस है ऑयल पे, ट्रेड पे, सारी चीज़ें, रेमिटेंस पे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बनाती है पाकिस्तान को कि वो ब्रिक्स में शामिल हो. और ये मेरा नुक्ता निगाह इस पे. आगे एनी अदर क्वेश्चन जी प्लीज. Thank you so very much. Acha, with this digital
डिजिटल इकोनॉमी और जो बिटकॉइंस का कॉन्सेप्ट आ गया, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच वी हैव ओवर हियर, कि क्या ये जो करेंसी आने वाली है, इज इट गोइंग टू बी अ डिजिटल करेंसी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट विद दैट? This is a question from all three panelists. डॉक्टर तलत से भी है, डॉक्टर वकार से भी है और डॉक्टर जबार से भी है. अब हम ग्रेजुअली फ्रॉम पेपर मनी टू कार्ड मनी और अब हम डिजिटल मनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. What जी would be the जी, status मैं of थोड़ा this सा इसमें एक्सप्लेन करूं. particular money? फर्स्ट ऑफ ऑल जो Transaction status क्या होगा? जी जी जी, मैं आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हेयर मी? जी जी बिल्कुल सर, आवाज जी आ रही सर, है। बिल्कुल. ठीक है जी जी. वी कैन डिजिटल हियर. करेंसी जो है वो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब करेंसी इशू करने की बात होती है तो क्वेश्चन अराइजेस कि देयर मस्ट बी अ सेंट्रल बैंक बाय ब्रिक्स, जो कि अभी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे ये करेंसी अगर इशू भी होगी तो करेंसी इशू हमेशा सेंट्रल बैंक करता है. जैसे स्टेट बैंक है पाकिस्तान में करेंसी इशू करता है, या बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो पाउंड इशू करता है, बुंडस बैंक है जर्मन मार्क इशू करता है, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो करेंसी इशू करता है. तो एक सेंट्रल बैंक की बात होनी है कि सेंट्रल बैंक जो है ना वो होना चाहिए. तो उसमें ये बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक को वो डिजिटल करेंसी इशू करे. तो उस पर बात हो रही है डिजिटल करेंसी जिसकी वैल्यू हो, और वो इस पे आगे मीटिंग्स होंगी बिफोर लॉन्चिंग द करेंसी, वो दे आर गोइंग टू कंसिडर इट. और उसमें जो यानी करेंसी को बैकअप मेरा ख्याल जो किया जाएगा वो गोल्ड से करने का प्लान है. तो इट्स गोइंग टू बी मोर पावरफुल. जब गोल्ड से बैकअप करेंगे एज परसेंट ऑफ गोल्ड करेंसी इशू होगी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी. पहले ये सिस्टम था लेकिन अब ये सिस्टम नहीं है वर्ल्ड में कि जो गोल्ड, क्योंकि पहले ये सिस्टम एक्चुअली फेल हो गया. आप देखें जो गोल्ड सिस्टम था वो ये था कि वो कोई कंट्री, किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो गोल्ड पे डिपेंडेंट होती थी. यानी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी एक्सपेंशन जितनी गोल्ड की होल्डिंग होती थी उससे ज़्यादा नहीं कर पाते थे. तो चूंकि ये लिमिटेशन थी, और आप देखें कि गोल्ड को की होल्डिंग बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था. मैनी कंट्रीज हैव इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, और उन्होंने गोल्ड हाई इंटरेस्ट रेट पे बाय करना शुरू कर दिया. तो जब उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया तो वो उनकी इंडेटेडनेस बढ़ा. एक जर्मनी का केस था कि वो उनकी एबिलिटी नहीं रही थी कि वो पे बैक कर सके. तो गोल्ड को अट्रैक्ट फिर यूएस ने इंटरनेशनल रेट जो है ना वो हाई कर दिया. तो जो कंट्रीज की जिसके पास गोल्ड ज़्यादा होता था वो करेंसी ज़्यादा इशू कर सकता था. तो लोगों ने, कंट्रीज ने जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए. उसका नतीजा ये निकला कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए और वो डिप्रेशन में चले गई इकोनॉमी और सिस्टम फेल हो गया. तो ये जो प्लान कर रहे हैं, जो बातें समझ में आ रही हैं कि दे आर बाइंग गोल्ड, दे आर इंक्रीजिंग देयर गोल्ड होल्डिंग. जो 10% ऑफ देयर टोटल रिजर्व हो चुकी है, मजीद वो 10% और बढ़ा सकते हैं. जो 20% ऑफ यानी कंप्लीट अगर वो कर लें, और जैसे ज़्यादा गोल्ड बढ़ाया जाएगा, और उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि गोल्ड की प्रोडक्शन कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते. तो ये मेरा ख्याल है कि गोल्ड से बैकअप नहीं करना चाहिए, कोई सिस्टम उन्हें इशू करना चाहिए कि जो थैंक यू करंटली. सर. जी जी थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू. इसी पे मैं आंसर लेना चाहूंगी डॉक्टर अब्दुल जब्बार से भी और डॉक्टर वकार से भी. इफ यू बोथ एनलाइटन अस, क्योंकि हमारे पास अब ये जनरेशन है, वी हैव यू नो द इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी हैव कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस. हमारा टाइम और जमा और मकान सिमटता जा रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आजकल की जो हमारी जनरेशन जी जो कि जॉब मार्केट में भी आ रही है, उनका कंसर्न डिजिटल बहुत ज्यादा है. सो अगेन आई वुड आस्क द सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव. डॉक्टर जब्बार साहब, अगर आप भी इसके ऊपर थोड़ा एनलाइटन करें. डॉक्टर वकार, आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन एज वेल, एनलाइटन ओपिनियन ऑन दिस बहुत एज वेल, शुक्रिया. कि बात यह है जो कि आजकल तो बिटकॉइन की तरह. डिजिटल का दौर है. देखिए, मैं अर्ज करूंगा आपसे, ये डिजिटल का दौर है, और प्लास्टिक
की बात हो रही है, इससे पहले मैं जो देगा पाकिस्तान को, वो नहीं आने देगा। और ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि चाइना और रशिया और इंडिया बराबर के वोट हैं। इनका जो बेसिक चार्टर है उसके अंदर एक बात लिखी गई है शुरू में, अनलेस दैट इज अमेंडेड, वो ये है कि हर मेंबर के पास, जो ब्रिक्स के फंडामेंटल 6 मेंबर्स हैं, उनके पास राइट ऑफ वीटो है। अगर इंडिया को हम रिक्वेस्ट करेंगे, चाइना रशिया रिक्वेस्ट करेगा, तो शायद वो मान जाए, तब हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलेगी। अदरवाइज उनको चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा। नंबर Yes, Dr. Bakar, if you would like to speak something on it. जी डॉक्टर साहब, आई थिंक इवेंचुअली तो ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू अडेप्ट विद डिजिटल करेंसीज। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉर्मली और इनफॉर्मली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है वो अडॉप्ट किए बैठे हैं। उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में इन डिजिटल एसेट्स को जो है, इन एसेट क्लासेस को ऑफ कोर्स अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर किया है। लेकिन जब आप एज अ कंट्री देखते हैं कि आपने एक डिजिटल करेंसी को लाना है और उसको बैक करना है रिजर्व से, तो फिर शायद प्रोबेबली चाइना, ब्रिक्स के अंदर ही अगर आप देखें तो शायद चाइना, रशिया, इंडिया में भी आर इकोनॉमीज जिनको अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी लेंस से देखूं तो उनके पास एक सिग्निफिकेंट रिजर्व क्लासेस की बैकिंग शायद मिल जाए। लेकिन जो बाकी इकोनॉमीज ब्रिक्स का हिस्सा हैं, या जो नई इकोनॉमीज इमर्जिंग मार्केट्स ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रही हैं, उनके पास पीछे उस लेवल की इस वक्त रिजर्व बैकिंग मौजूद नहीं है, चाहे वो गोल्ड या नॉन गोल्ड एसेट क्लासेस हों। बिकॉज बहरहाल डिजिटल करेंसीज जो हैं, they suffer from much more volatility, और ऑफ कोर्स जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं डिजिटल करेंसीज को, वो अब बड़े वेल नोन हैं। एक्सचेंज हैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स जो हैं वो बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि छोटी कंट्रीज के अंदर रेगुलेटरी अनसर्टनिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो ब्रिक्स के अंदर जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो शायद बहुत बड़ी होंगी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में उनका वेट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुछ जो है वो बहुत छोटी होंगी। सो इवेंचुअली आप देखें कि आप पिछले, अगर मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, आप डिजिटल करेंसी तो अभी खैर बहुत देर लेती है एक ब्लॉक की मेच्योर होने के लिए। अगर आप एक्चुअल करेंसी की एग्जांपल लें यूरो की, तो यूरो को मेच्योर होने में, यूरो के अंदर फेथ और ट्रस्ट आने में बहुत देर लगा है। और आप देखें कि बहुत सारी जो कंट्रीज थी, जब वो डेट क्राइसिस में गई, इंक्लूडिंग पोर्चुगल, इंक्लूडिंग ग्रीस, तो बहुत सारे उस मोड पे आ गए थे जहाँ पे चूंकि उनको नॉन यूरो डेट मिल रही थी, तो वो शायद ऑप्ट आउट करने लगे थे अगर जर्मनी उनको बेल आउट ना करता। सो ये अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है कि करेंसी एरिया जो है वो किस तरीके से मेच्योर होगा और फिर इवेंचुअली डिजिटल करेंसी पे बात जाएगी। Thank you so very much. We have a participant from India as well. पहले मैं Aditya Narayan साहब को कहूंगी, you can have a question. Welcome to this panel discussion. Welcome from both Pakistan Economic Forum and Global Studies Department. हम आपको welcome करते हैं that you have joined our session and you're here with us. जी, अपना question पूछिए। जी आदित्य साहब, आप unmute हैं but we can't hear you. आदित्य साहब, are you able to listen to us? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपसे हम क्वेश्चन। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जी जी, बोलिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, प्लीज थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। ओके ओके सर, अब आवाज आ रही है क्लियर हो सर? जी जी, आ रही जी आ रही ओके प्लीज। मैं सभी लोग का धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो कि आप हमें ये अवसर दिया आपने। मैं तलवर अनवर सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर जैसे कि आप लोगों ने कहा कि जो डॉलर आ रहा है भारत जरा मत देंगे।
यार उसकी रिकॉर्ड आए दूसरी। आवाज क्लियर नहीं जा रही क्या सर मेरी आवाज? जी क्लियर है, आप बस थोड़ा सा लाउड बोलिए, बाकी आप क्लियर है। अ, सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर ब्रिक्स देश मिल के एक करेंसी अगर लॉन्च करते हैं तो उससे जो पूरी जो एशिया कंट्री है उससे तो लाभ होगा, और डॉलर भी का वर्चस्व जो है वो डाउन हो जाएगा। इससे होगी ऑल जो एशिया कंट्री है उसको तो बेनिफिट होगा सर। तो क्या हम इस मिल के इस करेंसी को लॉन्च नहीं कर सकते हैं सर, जिस पूरी एशिया कंट्री को लाभ हो? जी बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल है। और यही अटेम्प्ट है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज प्लस, यानी ब्रिक्स प्लस का मतलब ये है कि 5 ब्रिक्स के मेन कोर कंट्रीज हैं। हेलो जी, सुन रहे हैं आप लोग? जी जी आवाज जी आ रही जी जी है? सर, जी आ आप रही है करिए सर। करिए क्वेश्चन। जो ब्रिक्स फिर कंट्रीज यही हैं, यही क्वेश्चन हम डॉक्टर वकार से भी थोड़ा सा लेंगे ब्रीफली, एंड डॉक्टर अब्दुल जब्बार से भी हम इसका आंसर लेंगे। जी सर, जी सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वो जो कंट्रीज ये जो लॉन्च कर रहे हैं, इसको यकीनन जो है ना, those countries, those who are using dollar will benefit because as the result of this move, dollar will depreciate. अब कितना होगा ये डिपेंड करता है कि कितना शेयर जो है, वो जो डॉलर जहाँ यूज हो रहा था वो ब्रिक्स करेंसी में जाता है, तो उसमें जो जाता है तो वो जितना शेयर जाएगा उसके मुताबिक जो है ना डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। यानी फॉर एग्जांपल अगर जैसे पेट्रो डॉलर की बात होती है कि बड़ी एक ग्रेट डिमांड है पेट्रो डॉलर की बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम ट्रेड, तो वो डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल इंडिया भी खरीदता, पाकिस्तान भी खरीदता, चाइना सबसे बड़ा बायर है। तो ये लॉन्च होती है तो ये सारी पेमेंट जो है ना ब्रिक्स के करेंसी उसमें जाएंगी। अगर ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ना एग्री कर जाते हैं और मेंबर बन जाते हैं तो उसमें होंगी, तो डॉलर विल डेप्रिशिएट, डॉलर की डिमांड जाएगी, तो हम लोग गेन यूं करेंगे कि हमें इंटरनेशनल डेट पेमेंट में हमें कुछ आसानी होगी। आल्दो के वो कंपेटिटिवनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हमें डेट पेमेंट में और हमारे लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी कि जो डेट रिडन कंट्रीज हैं उनको आसानी हो जाएगी एक्सटर्नल डेट के खास तौर से। इंडिया का जहाँ तक, इंडिया विल आल्सो गेन, और इंडिया ऑलरेडी जो है ना डूइंग वेल, इंडिया की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है बिकॉज दे हैव लिबरलाइज देयर इकोनॉमी। 90 से पहले उनका ग्रोथ रेट बहुत कम था, फिर बाद में उन्होंने मनमोहन सिंह ने काफ़ी अच्छे प्लान दिए और उसके बाद से तरक्की हुई है इंडिया में, और वह इकोनॉमी जो है ना प्राइवेटाइज हुई है, लिबरलाइज हुई है। उसके नतीजे में जो है ना वहाँ की ग्रोथ हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा बेहतर हुआ है। जी ऑन दी कंट्रेरी पाकिस्तान जो है ना 90 से देखें कि हालांकि हमारी भी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई है, लेकिन ये कि हमने हमारे कर्जे बहुत पड़ गए। हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी और ग्रोथ थी वो इट वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन डेट, कर्जों पे थी, जबकि इंडिया ने कर्जों पे नहीं डिपेंड किया, इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड किया। यही फर्क था पाकिस्तान इंडिया में। हमने यस कर्जे लिए, कर्जों के बाद आज हमारे पास कर्जों की कैपेसिटी नहीं है। हम अभी भी ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि आजकल बात भी हो रही है कि ग्रोथ का एक और एपिसोड लाया जाए, हम मजीद कर्जे ले लें और हम 4-5 साल के लिए अच्छी ग्रोथ रेट दिखा देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। जी थैंक यू जी, सो मच थैंक यू सर। वेरी मच। असल में थैंक यू सर। एक्चुअली दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन, काफी हाथ भी खड़े हैं एंड देयर आर क्वेश्चंस। मैं जरा क्विकली अब लेना चाहूंगी बिकॉज वी हैव एक्सीड आवर टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम ऑन संडे। Dr. Bakar, if you would like to answer us, we would like to be enlightened on this. And Dr. Abdul Jabbar, we would like to listen to you as well on this. Yes, Dr. Bakar Sahab. जी, वेरी ब्रीफली, जब भी करेंसीज को जॉइंटली लॉन्च और मैनेज करने की बात होती है तो सबसे बड़ा जो इशू है ना वो उन कंट्रीज की फिस्कल कोऑर्डिनेशन होता है। यू हैव टू बी बाउंड बाय फिस्कल रूल्स, और वो बहुत मुश्किल काम है कि आप अपनी जो एक फिस्कल वो थिंकिंग होती है, एक सोवरेनिटी होती है, वो किसी हद तक गिव अप करते हैं टू जॉइन ए करेंसी ब्लॉक। और फिर उसमें आपकी जो बजट डेफिसिट्स की लिमिट्स होती हैं वो भी रूल बेस्ड होती हैं। फिर आपकी डिस्क्रिशन नहीं होती कि जी मैं उन डेफिसिट्स को एनुअली एक्सीड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो अगर तो उस किस्म का फिस्कल डिसिप्लिन
ये ममालिक अचीव कर लें जिनकी हम बात कर रहे हैं, एशियाई ममालिक अचीव कर लें, फिर तो शायद उस तरफ हम जा सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर जब्बार ने बहुत अच्छी बात की है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। थोड़ा सा बस ऐड करूंगा मैं। जी 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 फिर सर। इससे पहले जो है ना, आप देखेंगे आजम डॉक्टर साहब प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए। जी, इससे पहले डॉक्टर महबूब उलक ने एक किताब लिखी थी, रिफ्लेक्शंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं रीजन में इंडिया के साथ, हमें दूर करने चाहिए और बैठकर बायलैटरल डायलॉग के जरिए दूर करें, और फिर हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग कम करें। जो डिफेंस स्पेंडिंग हम गैर जरूरी कर रहे हैं, जो ज़ाया कर रहे हैं, फौज बढ़ा रहे हैं या असलाह लेके खरीद के ज़ाया कर रहे हैं, वो पैसा हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करें। ये महबूला की प्रपोजल्स थी जो आज भी बुक में मौजूद है। आई थिंक वो बड़े प्रोपोनेंट थे इस बात के कि ओके सर। ह्यूमन डेवलपमेंट। Sir, I'm so sorry. Dr. Waqar कंटिन्यू has कीजिए। another meeting as जी well. मैं दोबारा सेशन भी लेती हूँ। एक तो एक डॉक्टर बदीहा ने काफी देर से शी वाज रेजिंग हैंड, राशिद नासिर साहब भी हैं। उसके अलावा बहुत से क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन हुए हैं। मुझे लगता है वी शुड डू अनदर सेशन इरफान साहब इसके ऊपर। एक्सक्यूज मी मैडम साहब, डॉक्टर वकार साहब की जी उन्होंने जाना है। 7:45 उनकी मीटिंग थी वो पीटीपी वर्ल्ड पे, तो उनको जाना पड़ गया अचानक से। मैं डॉक्टर वकार साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना ज्यादा टाइम दिया, और उनकी पैरेलल 2 मीटिंग भी चल रही थी, और उसके बावजूद उन्होंने हमें पूरा 1.5 घंटे का टाइम दिया। अल्लाह आप लोगों को और ज्यादा इस्तकामत दे। और इतना जबरदस्त सेशन, मेरी उम्मीद से ज्यादा, कि कितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, कनेक्टिविटी का इश्यू और सब चीजें पैरेलल। लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और डॉक्टर तलत साहब, आप भी शायद जाना चाह रहे हैं, तो आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने इतना ज्यादा टाइम दिया, अपनी मसरूफियत से इतना ज्यादा टाइम दिया, और इतने ज्यादा जो हमारा ये सेशन जो कामयाब हुआ है, इट इज ऑल अबाउट योर एफर्ट। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू। इवन मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ। हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ था, दे आर वेरी मच एनलाइटेंड। डेफिनेटली वी विल गिव यू फीडबैक एज वेल। थैंक यू। सो काइंड ऑफ यू। यू आर वेलकम बहुत सर। शुक्रिया। आई एम लिविंग नाउ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। डॉक्टर सैमा खान आपका, डॉक्टर जब्बार खान साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर जब्बार साहब का बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस पर्टिकुलर जो डोमेन्स है। अब मैं वो आप लोगों को थ्रू देयर ईमेल, थ्रू देयर व्हाट्सएप, हम आप लोगों को उसके जो लिंक्स हैं वो फॉरवर्ड कर देंगे। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने 2 घंटे, इट्स रियली अ वेरी टफ टास्क ड्यूरिंग इतना हम इतनी एक सारा दिन अपनी रूटीन में बिजी, और फिर एक वीकेंड में अपनी फैमिलीज को छोड़ के आप लोगों ने सेशन अटेंड किया। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरी जो टीम है पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम और ग्लोबल स्टडी डिपार्टमेंट, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इन्होंने जो हमारे साथ एक इस सेशन पे कोलैबोरेट किया, और जो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट थे डॉक्टर तलत साहब और डॉक्टर वकार अहमद साहब, और जो हमारे नेबरहुड से जो हमारे कुलीग्स आए, स्पेशली आदित्य नारायण, और कुछ हमारे कुलीग चाइना से, कुछ अफगानिस्तान से उन्होंने ज्वाइन इंडोनेशिया किया। से। आप इंडोनेशिया जी, से। इंडोनेशिया से और भी काफी कुलीग्स हैं। तो आप सब लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने अपनी मसरूफियत से हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला हम लोग ऐसे ही आप लोगों की लिए डिफरेंट सेशन वगैरह करते रहेंगे, ताकि एक अवेयरनेस आए और हम लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर इनपुट अपना दे सके। मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, इवन जो बीएस लेवल के हैं, जो एडीपी लेवल्स के, उनको मोटिवेट करें ताकि वो हमारे सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आए। मैं इस सेशन में एक कॉलेज का नाम लेना लाजमी समझूंगा। हमारे कुलीग ही हैं, जड़ांवाला का एक कॉलेज है फैसलाबाद में। हमारे वहाँ पे दोस्त हैं डॉक्टर तारिक साहब। बिलीव करें कि उन्होंने हर सेशन पे ये पॉइंट आउट किया होता है कि अपने स्टूडेंट को कि आपने हर सेशन अटेंड करना है पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम का। ये एक मोटिवेशन है टीचर की अपने स्टूडेंट्स के लिए। और मैं दाद देता हूँ कि डॉक्टर तारिक साहब को और उनकी टीम को, उनके स्टूडेंट्स को, कि वो अपनी मुसरूफियत के साथ साथ हमारे जो सेशंस हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं। अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगेन डॉक्टर सैमा खान, डॉक्टर जब्बार और पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम और ग्लोबल स्टडीज,
आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।